Namaskar dosto, good evening friends. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly and familiar endocrinologist, and you are watching Dr. KK's Med Talks, Thursdays with Dr. Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन-स्टॉप शो का 913वां 913th एपिसोड है. Let's have the headlines for the day. Now, according to Lancet, 70%, 70% of all premature cancer deaths were preventable in the year 2020 and 30% were treatable. तो कैंसर से जो डेथ हो रही है, जो दिक्कत आ रही है हम सबको, उससे हम एक्चुअली लड़ सकते हैं. We just have to take the right steps at the right time. Out of 90 medicines for cancer, India has the lowest rates for 42 of them across the world. This is from our Health Minister Mansukh Mandaviya sahab. And the Central Drug Research Institute has developed a locally made DNA gel stain called Green R. This is used in RT-PCR tests for COVID-19. तो अब ये डाई हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी. इंडिया में ही हम ग्रीन आर डाई यूज कर सकते हैं कोविड-19 के टेस्ट के लिए. Now, there is a study which says that 60% of all participants in clinical trials are from India. और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ओवर रिक्रूटमेंट है. मगर जब सारे आंकड़े देखते हैं, when we look at data in perspective, then we see that actually India is underrepresented across the world in clinical trials. तो इस पे डिस्कशन जारी है, and we can talk about that in a later episode of KK Med Talks. And in view of the recent spike in dengue cases in India and in neighboring countries, the Union Health Minister has directed officials to be fully prepared and to strengthen prevention, containment and management of the disease. खूब सारी headlines, मगर एक और headline है that tomorrow is World Health Day. 29th September is World Heart Day. Sorry, गड़बड़ हो गई. ना Diabetes Day है, ना Health Day. It is World Heart Day. So let's see our headline for today and let's see our topic for today. Use heart and no heart. ये आज का हमारा टॉपिक है. एंड जैसे हमने बोला कल है वर्ल्ड हार्ट डे, तो अब एक हार्ट स्पेशलिस्ट चाहिए. सो वार्म वेलकम बैक टू डॉक्टर कमल किशोर. Thank you, sir. Dr. Kamal, warm welcome. The audience already knows you, but just to repeat again, Dr. Kamal Kishor is a very revered, a very respected personality in the realm of cardiology. And he heads the Department of Cardiology at Rama Hospital in Karnal in Haryana. He has built an impressive career, clinical skills, education, writing, speaking, in every aspect of health. He holds a very respected place, like we have said. And Dr. Kamal, आप पहले भी आए हुए हैं. अभी हाल ही कुछ हफ्ते पहले हमने बात की थी हार्ट फेलियर पे. कमेंट आ रहा है कि आप हमारे दिल के डॉक्टर हैं, आप दिल को छू देते हैं. Your comments on that, sir? It's my pleasure to be part of this team, and it's really honor to have to share the platform with Dr. Sanjay Kalra, who himself is a eminent personality, and if somebody talks about him, obviously very high. So I really feel very good that I know him very much personally. So Karnal rather than Haryana is pleased to have personality like you, and I hope this discussion will definitely add some knowledge in public as well as the government agencies for improving the healthcare issues. हमारे सीनियर सर हैं डॉक्टर नंदलाल शारदा सर फ्रॉम अहमदाबाद. ही सेंड्स यू हिज ब्लेसिंग्स. विनय गुप्ता जी आपको वार्म वेलकम कह रहे हैं. एंड विनय गुप्ता जी कह रहे हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट काफी रंगीले होते हैं, तो दिल बहुत रंगीला ऑर्गन है बॉडी का. वील टॉक अबाउट दैट. डॉक्टर पवार सर इज पीडियाट्रिशियन. एंड सर आपको ग्रीटिंग्स आ रही हैं फ्रॉम डॉक्टर उत्सव साहू, हु वाज योर जूनियर रेजिडेंट in college, and he says that Dr. Kamal Kishor created a very hearty, very heartful environment during the residency also. This is from Dr. Utsav sir. Thank you, sir. Sir, आज का टॉपिक है use heart, no heart, and Dr. नंदलाल शारदा सर इसमें ऐड कर रहे हैं use heart, do not lose heart. यदि कोई परिस्थिति ऐसी आए जब आप उदास हों, डिप्रेस्ड हों, do not lose your heart.
तो if we have to use heart, what the world हार्ट फाउंडेशन सेज नाउ इज कि आप हार्ट वाली इमोजी इस्तेमाल करें अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। तो डॉक्टर कमल, फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द ऑडियंस इज, ये जो हार्ट वाली इमोजी है हम यूज करते हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया में, इट इज यूज्ड एंड मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड इन मल्टीपल वेज, बट जिस तरह की इमोजी है ऐसे वाली बनी हुई, डज द हार्ट एक्चुअली लुक लाइक दैट? हार्ट की शक्ल कैसी होती है? नहीं, वो वाला हार्ट लव बर्ड्स वाला हार्ट है। But that actually represent the only lower part of the heart, that is ventricle predominantly. But actually heart is more like say a thumb with this thumb is going some of the great vessel. I can just say heart is the most beautiful organ in our body. इसलिए भी है कि आप अ, इसकी प्रिसाइजनेस आप मिली सेकेंड के हिसाब से मेजर कर सकते हैं। अगर हमारी धड़कन जो बन रही है वो कुछ मिली सेकंड से भी डिले होती है, तो भी पेशेंट के जो धड़कन की समस्या या कोई हार्ट फेलियर की समस्या या हार्ट डिजीज या पेसमेकर की नीड, कई तरह की समस्या खड़ी हो जाती है। सो हार्ट एक ऐसा, डेफिनेटली बॉडी का हर एक ऑर्गन की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट हार्ट एक ऐसे जिसकी मिली सेकेंड्स के जो गैप है हम ईसीजी के तरीके से मेजर कर सकते हैं कि हाउ ब्यूटीफुली दिस हार्ट हैज़ बीन क्राफ्टेड बाय गॉड, and there is no doubt that we must take care of this organ which is the motor for our heart with our full efforts, and अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करें तो हमें यूज़ हार्ट, व्हाट आई फील, हमें पब्लिकली भी डिस्कस करना चाहिए कि हाउ पब्लिक शुड यूज़ हार्ट टू नो द हार्ट डिजीज, और हमें बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म हमें कुछ गवर्नमेंट policies की तरफ भी we should focus on the government policies also. How can these policies should be improved so that publicly heart disease, burden of heart disease can be cut down. आप Dr. Kalra itself have been active participant in many of the clinical trials, so he knows well that we are struggling with the various data scarcity and over enrollment of the patient in Western clinical trials. So all this can be nicely handled if we become a little bit vigilant, both us as well as the body. Maybe if sir gives me opportunity, we will discuss in later half of this talk. सो मल्टीपल थिंग्स कमिंग अक्रॉस। एक तो जैसे डॉक्टर कमल कह रहे हैं, द हार्ट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दूसरा, जब हम बात करते हैं मान लो घड़ियों की, लेट्स से कोई स्विस वॉच की, तो हम कहेंगे वो सेकंड के सेकंड हमें टाइम बताती है, सही टाइम बताती है, मगर हमारा हार्ट जो है वो तो मिली सेकंड्स में बताता है। और मिली सेकंड से कम भी अगर देरी हो जाए हार्ट में ब्लॉक हो जाए या हार्ट में कोई अरिथमिया हो जाए, धीमी गति से हार्ट चले या तेजी से चले, तो भी बीमारी हो सकती है। तो इसका मतलब डॉक्टर कमल, ये जो हमारा दिल बनाया भगवान ने या एवोल्यूशन ने हमारे दिल को बनाया, ये तो घड़ी से भी ज्यादा नजाकत वाला ऑर्गन है, बिल्कुल सर, और बिल्कुल घड़ी आप। से ज्यादा नाजुक ऑर्गन भी है क्या? हाँ जी, हाँ जी। आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखिए सर, अगर हमारी हार्ट की धड़कन का ओरिजिन जहाँ से धड़कन निकल रही है, वहाँ से वेंट्रिकल जो नीचे वाला हिस्सा हार्ट में पहुँचने में नॉर्मल जो रेंज रहती है वो 120 मिलीसेकंड, 120 मिलीसेकंड से 210 मिलीसेकंड तक रहती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये 210 मिलीसेकंड से ज़्यादा है, वो भी हमारे लिए एक वर्री वॉइस है। सो हम जब हार्ट की बात कर रहे हैं, हम मिलीसेकंड्स की बात कर रहे हैं। तो इसकी प्रिसाइज़नेस, और अगर हम इसे नीचे जाएँ तो ये और भी शायद पब्लिक को थोड़ा-सा मुश्किल हो समझने में, बट हम 60 मिलीसेकंड, 30 मिलीसेकंड तक भी इसके लिए आप हमें इश्यू क्रिएट हो सकता है। तो हार्ट बहुत ही प्रिसाइज़ली, हर ऑर्गन, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन में भी प्रिसाइज़ है, बट वहाँ हम प्रिसाइज़नेस देख नहीं पाते हैं। बट यहाँ हमारे पास कुछ बहुत सिंपल टेस्ट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ईसीजी है, इकोकार्डियोग्राफी है, जिससे हम बिल्कुल साफ तरीके से पहचान सकते हैं कि हार्ट की धड़कन में इतने मिलीसेकंड का गैप आ गया है और इसकी वजह से पेशेंट को ये दिक्कतें
ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सो ये हमें डे टू डे बेसिस पे बड़ा ही एक सरप्राइज़ करता है, डेली बेसिस पे हाउ ब्यूटीफुली गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस नाइस ऑर्गन। तो जो हार्ट है वो बहुत ही मतलब प्रिसिजन साइंस वाला ऑर्गन यस, है। बिल्कुल यस, प्रिसिजन के साथ काम करता है और मिली सेकंड्स तक एक तो वो काम करता है हार्ट, दूसरा आप उसको नाप सकते हैं। यू कैन मेजर द इफेक्ट ऑफ द हार्ट और द वर्किंग ऑफ द हार्ट ऑल्सो। सर आपको गुड इवनिंग आ रही है गुरविंदर कौर जी से, थैंक यू अनंत सर। प्रकाश मिश्रा साहब से और अली नजाकत साहब से। एंड स्वप्ना जैन मैडम फ्रॉम वेलोर इज सेइंग गुड इवनिंग टू यू। थैंक हमने यू। बात की कि हार्ट की शक्ल कैसी होती है, सबसे सुंदर ऑर्गन होता है एंड यू माइट वांट टू से कि इसका साइज जो है हमारी मुट्ठी जैसा है। अगर आप अपनी मुट्ठी ऐसे रखें ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, तो ये आपको बताएगा भी हार्ट कहाँ पे है और कितना बड़ा है, रफली आपकी फिस्ट जितना है। जीपीएस इंस्टीट्यूट रॉक्स कहते हैं, सर देयर इज अ क्वेश्चन, डज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली ब्लॉक आर्टरीज एंड हाउ डू वी एक्सप्लेन द फैक्ट कोई व्यक्ति होगा जिनका एलडीएल नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, तो भी उनको हार्ट अटैक हो जाता है, और कई लोग हैं जिनका एलडीएल नॉर्मल होना चाहिए 100 से कम या 70 से कम, और उनका 200 250 300 है तो भी उन्हें कुछ नहीं होता 10 साल 20 साल। तो व्हाट इज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड डज इट एक्चुअली ब्लॉक द आर्टरीज? हमें फिजिकली दिखाई देता है क्या कि खून की नस में काई जम गई है या खून की नस में कोलेस्ट्रॉल जम गया है? फिजिकली हम देख पाते हैं इसको? यस, सो देखिए जब हम कोलेस्ट्रॉल को मेजर करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर हम किसी भी रिपोर्ट में देखेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स, एचडीएल, एचडीएल, एलडीएल। सो ये डिवीजन होती है बेसिकली डेंसिटी के हिसाब से कि वो पर्टिकुलर कंपोनेंट कितना भारी है। सो इसको कहते हैं लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। जितनी भी हमारी क्लिनिकल ट्रायल्स हुई हैं उनके हिसाब से जो एलडीएल वाला कंपोनेंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आर्टरीज की ब्लॉकेज को शुरुआत करने के लिए। लेकिन ये हमें समझना होगा कि ये सिर्फ एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि किसी भी हार्ट डिजीज को जब कोलेस्ट्रॉल के बनने की शुरुआत होती है, ब्लॉकेजेस होती हैं, तो मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स उसके अंदर रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल एक डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होगा वो ज़्यादा भारी होगा व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। सो एक डायबिटिक पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल 70 है और एक नॉर्मल पर्सन जिनको डायबिटीज नहीं है उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 70 है, तो इन दोनों में ही डिफरेंस है। डायबिटिक पेशेंट का रिस्क बहुत ज़्यादा होगा सेम कोलेस्ट्रॉल के साथ। सिमिलरली उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनका खाने पीने का आदतें हैं, या कोई ऐसी मेडिसिन जिनसे हार्ट डिजीज होने का रिस्क बढ़ रहा है, या कोई लंबी बीमारी से कोई संक्रमित है, फॉर एग्जांपल एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या any intestine inflammatory disease. So there are multiple issues. LDL is one and the most important risk factor for starting or initiation of the heart disease. और दो पर्सन में इसलिए रिस्क फैक्टर डिफरेंट हो सकता है बिकॉज इट डिपेंड्स कि दूसरे पेशेंट के अंदर और रिस्क फैक्टर क्या है। तो एंड मल्टी सेकंड एस्पेक्ट जो सर ने बोला है कि हम उसको देख सकते हैं, हम डेफिनेटली दे सकते हैं। आजकल जो नई इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, जब हम एंजियोग्राम करते हैं तो हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसको हम आईवस कहते हैं या ओसीटीज करते हैं। उसके अंदर बहुत क्लियरली हमें दिखता है कि कोलेस्ट्रॉल का कितना बड़ा पोर्शन इसके अंदर एक्यूमुलेटेड है और उसको हम स्टेंट से या बलून से साफ करने के बाद कितने परसेंट वो रह गया है। सो देर आर टेक्निक्स जो हमें बहुत अच्छे तरह से मेजर कर सकती है कि हमारे पास कितना बर्डन है कोलेस्ट्रॉल। और एक्चुअली इसे आप इन्वेजिव तरीके से देख सकते हैं। इन्वेजिव मीन्स कि हमने मान लो कोई सुई डाली एंजियोग्राफी की, बट नॉन इन्वेजिव तरीके से भी देख सकते हैं। कैल्शियम स्कोर नापा जा सकता है सीटी स्कैन से, बहुत सारे टेस्ट हैं जिनके साथ आप नॉन इन्वेजिव में चेक कर सकते हैं। Even और ultrasound can detect by using the carotid artery Doppler यस, of हाँ, उससे भी हम एक आइडिया rather than that कैरोटिड is आर्टरी। one of the basic screening tool for assessing the risk of heart disease in patient having dyslipidemia. सो मल्टीपल वेज आर देयर। सर निशी बाला मैडम आपको हेलो कर रही हैं और एडवोकेट आवी जी राम राम जी कर रहे हैं आपको। मंजुला मैडम कहती हैं दिल तो ऑलवेज बच्चा है जी। तो ये दिल जब बच्चा होता है
तो ज़्यादा नॉटी होता है क्या? तब इसका हार्ट रेट कितना होता है? कैसे काम करता है? और जैसे-जैसे हमारा दिल बड़ा हो जाता है, किशोर अवस्था में से निकलता है, थोड़ा-सा दुनिया की टेंशनें, घर-बार की टेंशनें होती हैं, तो व्हाट हैपेंस टू द हार्ट? देखिए, जैसे हमारी उम्र है, हमारी उम्र वैसी हार्ट की उम्र है। तो इन दोनों को हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक 30 इयर्स मेल है, तो उसको पैदा होने से अब तक 30 साल हो चुके हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है उसका हार्ट 30 इयर्स का ही हो। फॉर एग्जांपल उनके अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, उनकी आदतें खान-पीन की सही नहीं है, फैमिली हिस्ट्री अच्छी नहीं है, ही इज़ डायबिटिक, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, वो जंक फूड बहुत खा रहे हैं। तो हो सकता है उनकी जो हार्ट की एज है ऑलरेडी 60 पे हो। मीन्स उसको उसके हार्ट की जो कंडीशन है, परफॉर्मेंस है, वो वैसी ही है जैसे एक 60 इयर्स के मेल की होती है। डेफ़िनेटली वो ज़्यादा कमज़ोर होगा एक यंग पेशेंट से। वाइस वर्सा भी है, जो पेशेंट बहुत हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखते हैं, जो डेली एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहते हैं, जिनका खान-पान में फ्रूट्स, फाइबर, सैलाड ये सब ज़्यादा रहता है, जो जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करते हैं, जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। तो वी में से 60 ईयर मेल, 60 ईयर पेशेंट जिनका हार्ट 30 ईयर की हो, वो एक्टिव हैं फिजिकली, अपने आप उन्होंने 40 साल तक, 30 ईयर्स तक दे आर इन्वॉल्व इन हैवी स्पोर्ट्स। सो हमारी एज और हार्ट की एज, इनमें एक डेफिनेटली डिफरेंस रहता है, जो डिफरेंस मेजर कर सकते हैं हम उस पर्टिकुलर पेशेंट वो किस तरीके से अपना लाइफ स्टाइल इन्वॉल्व जी रहा है उस तरीके से। सो दिस मीन्स कि यदि हम सही लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करें और सही प्रिवेंटिव मेडिकेशन लें, दवाई लें, तो एक्चुअली हम अपने हार्ट को यंग रख सकते हैं। योर हार्ट ऑफ कोर्स विल एज, एजिंग तो सभी के साथ होनी है, बट यू कैन प्रिवेंट प्रीमेच्योर एजिंग। यस। डॉक्टर समरीन फातिमा एक सवाल पूछ रही हैं सर, ये थोड़ा-सा सिलेबस से बाहर है। सो इन अ सॉफ्ट एंड इमोशनल सिचुएशन, हाउ डू यू मेक द हार्ट हार्ड? आप अपने दिल का ख्याल कैसे रखें और दिल को सख्त कैसे बनाएं जब कोई ऐसी परिस्थिति हो जब आप भावुक हो गए हैं या इमोशनल हो गए हैं या यस। जज्बाती हो गए हैं? देखिए, ये एक जर्नी है लाइफ की। इसमें मैं एक थोड़ा सा एक भगवत गीता में एक बहुत बेसिक कंसेप्ट रहता है कि जिसे हम समता का कंसेप्ट बोलते हैं। समता मीन्स आपको एक अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप बहुत जब एक्साइटेड हैं तो ज़्यादा खुश ना हो, और बहुत जब दुखी हैं तो ज़्यादा उदास ना हो। ये कंट्रोल है जो कि समय के साथ ही आता है विद मैच्योरिटी। आप अगर अगेन जो हम मैं सेम ही चीज़ करूँगा, अगर आप अपने आप को अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा रखेंगे, मेडिटेशन है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, खान-पान है, तो ये आपको इनर एक कॉन्फिडेंस देगा कि देयर इज़ नथिंग देयर इज़ नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन योर बॉडी इटसेल्फ। सो डेफिनेटली इमोशंस आर पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर इमोशन नहीं होंगे तो ह्यूमन बीइंग वो नहीं हो सकता। बट काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और एक फ्लक्चुएशंस हैं हमारे बिहेवियर की, उसको काफ़ी हद तक हम रोक सकते हैं, बशर्ते हम एक ऑनेस्टली एक अच्छा लाइफस्टाइल उसको हम फॉलो करें। तो लाइफस्टाइल किस तरीके से आप जी रहे हैं, किन परिस्थितियों में आप डे टू डे रह रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। द वर्ड लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये बहुत वजूद वाला लफ्ज है। इट्स अ वेरी हैवी वेट काइंड ऑफ अ वर्ड। लाइफस्टाइल, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आपके आसपास क्या हो रहा है। अ सिमिलर वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इज माइंड स्टाइल। माइंड स्टाइल मीन्स आपका माइंड किस तरह से सोचता है, क्या करता है। सो वी कैन फोकस ऑन लाइफ स्टाइल विच मीन्स आप मे बी अपनी एनवायरनमेंट पे फोकस करें, देखें आप सुबह समय पे उठ रहे हैं, रात को टाइम पे सो रहे हैं या नहीं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट इज लाइफ स्टाइल। माइंड स्टाइल वुड मीन जब आपके सामने कोई इमोशनल सिचुएशन आती है, कोई चैलेंज आता है, इमोशनल चैलेंज, हाउ डज योर माइंड रिएक्ट? जब नहीं भी आती कोई इमोशनल चैलेंज, अदरवाइज रूटीन में आपका माइंड कैसे काम करता है, क्या करता है, दैट इज माइंड स्टाइल। एंड इफ वी फोकस ऑन आवर माइंड स्टाइल डॉक्टर समरीन, एंड उसको हम स्ट्रांग बनाना शुरू करें, तो यदि हम अपने मन को स्ट्रांग कर लें, वी फोकस ऑन आवर बिलीफ्स,
and our emotions, automatically our words and actions become healthy, they become appropriate. One way would be, maybe let us say there is a challenging situation. Instead of focusing on the emotions after that, you focus on the learning. आपने क्या सीखा इससे? And that way you are able to find a positive spin off for this. अब बात करते हैं, जैसे डॉक्टर कमल किशोर और मैं, हम एक ही जगह पे काम करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, और कई बार हम अपनी डायबिटीज क्लिनिक में डायग्नोस करते हैं हार्ट डिजीज। मरीज डॉक्टर कमल के पास जाता है, हार्ट डिजीज नहीं निकलती। कभी कभी हम हिस्ट्री लेते हैं, हमें लगता है कोई एंडोक्राइन डिजीज है, बट एक्चुअली हार्ट डिजीज होती है पेशेंट को, डॉक्टर कमल उसको पिकअप कर लेते हैं। वन वे ऑफ reacting to that would be that I react and say कि ये तो बहुत ही गड़बड़ है, डॉक्टर कमल किशोर इज मेकिंग द रॉन्ग डायग्नोसिस ऑल द टाइम, सही डायग्नोस तो मैं कर रहा हूँ। दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। दैट्स अ वेरी इमोशनल जज्बाती काइंड ऑफ एन ओपिनियन। अनदर वे माइट बी, मैं ही हमेशा गलत हूँ, डॉक्टर कमल करेक्ट है, तो लेट मी सेंड ऑल माय पेशेंट्स टू डॉक्टर कमल, वही देखें सारे मरीज, उनकी शुगर उनका हार्ट देखें। दैट इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम काइंड ऑफ एन इमोशन। But better than that would be to create a learning out of all these things. तो जब भी ऐसे कोई डायग्नोसिस में फर्क आए, तो डॉक्टर कमल से मैं बात कर लूं और इनसे सीखूं भी, यार मेरे को तो लग रहा था इसको पक्का हार्ट डिजीज निकलेगी, खूब सारा कोलेस्ट्रॉल होगा, सब कुछ था, पर कुछ नहीं निकला, तो ऐसा क्यों था? तो हर चीज से अगर हम लर्निंग निकालते हैं, तो उस तरह से हम बेटर होते जाते हैं, एंड वी बिकम स्ट्रॉन्गर। Of course, purposely, I have taken a professional example, but we can take personal examples as well. Supposing I got rejected by somebody, maybe once upon a time, long ago, तो या तो मैं रिजेक्शन में वैलो करता रहूं और उदास होता रहूं, या मैं देख लूं भी यार क्यों रिजेक्ट हुए थे, मे बी हरी कमीज पहनी थी इसलिए रिजेक्ट हो गए, चल अगली बारी पिंक कमीज पहन के जाएंगे, लाल कमीज पहन के जाएंगे। सो यू लुक एट दोज काइंड ऑफ थिंग्स। And you must have realized by now, Dr. Kamal plays very safe, so he wears a neutral colored shirt ताकि कहीं से रिजेक्शन ना आए। Is that right, Dr. Kamal? Yes. That is right. विनय गुप्ता जी पूछ रहे हैं, हमारा टॉपिक है यूज हार्ट, दैट इज यूज द हार्ट इमोजी, एंड नो हार्ट, और ये वर्ल्ड हार्ट डे की तरफ से आया हुआ है। तो नो योर हार्ट में इज दिस करेक्ट सर, कि हमारा दिल जो है वो बिजली पे चलता है, एंड इज इट ऑल्सो करेक्ट कि हमारा दिल जो है वो केमिकल्स पे चलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स पे, सोडियम पोटेशियम? इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, एंड हाउ कैन वी यूज दिस नॉलेज टू कीप आवर हार्ट हेल्दी? यस। ये हमने अभी डिस्कस भी किया है कि हार्ट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड ऑर्गन, जिसमें मिली सेकेंड भी हमारे लिए एक चैलेंजिंग इश्यूज हो जाते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली, जैसे किसी भी मोटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हार्ट के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हार्ट के अंदर बहुत स्पेशल केमिकल होते हैं, बहुत प्रिसाइज मात्रा में। अगर हम मिली सेकेंड की बात करें तो आप हैरान होंगे कि मिली सेकेंड अलग बात है, जो केमिकल्स ड्राइव करते हैं इस स्टिमुलस को, वो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मींस 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, दैट इज फार 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 बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो अगर वो मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ 5 से बढ़कर सिंपल 7 भी हो जाए, तो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो डिपार्टमेंट है हार्ट का, वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में पहुंच जाता है। तो हमारा हार्ट बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से काम करता है। उसके अंदर कुछ पोटाशियम की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ सोडियम केमिकल्स होते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट टू शुड बी इन अ वेरी एक प्रिसाइज मैनर्स, सो दैट जो इलेक्ट्रिक कंडक्शंस हैं हार्ट को मूवमेंट्स के लिए इसेंशियल्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से चैनलाइज हो सके। सो हार्ट का एक अपना रिदम है, इसको हम बेसिक लेमैन के एंगल से हम ये भी समझ सकते हैं कि हार्ट के 3 डिपार्टमेंट रहते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वेयर द करंट स्टार्ट्स एंड इन प्रोपेगेट इन डिफरेंट चैम्बर ऑफ हार्ट। उसके बाद जैसे ही करंट आता है, वो करंट मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस, अगर स्ट्रेंथ मसल्स की अच्छी है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है, जिससे मसल्स की पंपिंग स्टार्ट होती है। And third part is the muscles, the cavity that is encasing this heart itself, and other supporting structure, for example blood vessels. So हर एक component में disturbance है, वो एक different type of disease के साथ associated है। For example, if there is a problem with electrolyte or electric conductions,
then symptoms are different. If there is a issues with the मसल्स की पावर नहीं है, मसल्स कमज़ोर है, उसके इश्यूज डिफरेंट रहेंगे. जिनके अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है उनको अलग तरीके के सिम्टम्स आएंगे. सो ये एक इंटीग्रेटेड वर्क रहता है जिसमें सब डिपार्टमेंट ने काम करना होता है, तो ही हार्ट एक प्रॉपर तरीके से पंप कर सकता है. थैंक यू सर. मोर क्वेश्चंस आल्सो कमिंग अप. डॉक्टर खिलेंद्र सक्सेना जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपको गुड इवनिंग कर रहे हैं. बिमला कपूर मैडम लॉग्ड इन है एंड गुरविंदर कौर जी पूछती हैं, डज हाई ब्लड प्रेशर always mean heart disease and heart attack, or can they be different? And also, can high blood pressure cause epilepsy? Can it cause seizure disorder? Yes, high blood pressure, it is a altogether different disease than heart attack. High blood pressures से बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, उसमें हार्ट अटैक एक बीमारी है. और हाई ब्लड प्रेशर आपके हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, आपके ब्रेन को, किडनी को, डिफरेंट ब्लड वेसल्स जो आपकी लिम्स में है उनको. So there are eyes को, there are multiple ways hypertension can affect your bodies. But high blood pressure never means heart attack. These are not interchangeably words. So heart attack means कि आपके हार्ट में जो खून की सप्लाई है वो रुक गई है, और हाइपरटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर इज ऑन द हायर साइड. बट डेफिनेटली एक चीज़ है कि जब भी आपकी ब्लॉकेजेस होती हैं उनमें काफ़ी पेशेंट्स को जो ब्लड प्रेशर है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बिकॉज ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स दैट आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी, उनसे कुछ टाइम के लिए वो ऑन द हायर साइड सेट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को एक परसेप्शन होती है कि हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक एक जैसी बीमारी है. सेकंड, आपका जो क्वेश्चन है कि इससे सीजर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर मीन्स कि वो डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है. अगर वो ब्रेन को इन्वॉल्व करेगा, फॉर एग्जांपल स्पेशली इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, तो उस केस में सीजर या एपिलेप्सी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं. थैंक्स. एक और क्वेश्चन मैडम का है, गुरविंदर कौर जी का. COQ10, can I take this for good heart health? Coenzyme Q10. Yes, generally in allopathy we believe that we should go with evidence-based medicines only. So COQ10 is not evidence-based medicines. It is not currently recommended for any kind of medical therapies except some cases of advanced heart failure, and even that it is recommended with a very soft, in a very soft tone. If nothing is going on, let's try like this kind of things. So preferably not, and it's not going to create any magic in your heart, or it will prevent you from heart attack. So first, rather than the healthy lifestyle that we have earlier discussed, far, far, far better than this COQ10. Madam Alpa Patel has a question. A heartbeat of 100 or more than 100, is this always worrisome? My age is 49, BP is slightly on the higher side, cholesterol is almost okay, hemoglobin is 10 to 11. जैसा आप बता पा रहे हैं कि इस एज में 100 110 इज ऑन द हायर साइड. So the main reason, most common reason what we face in OPDs, the patient who are not involved in physical activity, who live in a sedentary lifestyles, who eat lot of junk foods. So these are kind of personalities who have higher heart rate at baseline. So this is not desirable at your age. So you should work hard. आपको और मेहनत करनी है. आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और अच्छा लाइफस्टाइल रखिए, तो हार्ट रेट 6 वीक्स टू 6 मंथ में 10 to 15 बीट्स पर मिनट के हिसाब से कम होनी शुरू हो जाएगी. थैंक यू फॉर दैट एडवाइस डॉक्टर कमल. एंड अल्पा जी, एक अगर हार्ट बीट बहुत तेज हो तो अपार्ट फ्रॉम कार्डियक रीजंस थायराइड भी हो सकता है. थायराइड चेक करा लें. आपने हीमोग्लोबिन की बात की, इट इज अराउंड 10 to 11. जब हीमोग्लोबिन लो होता है, 10 इतना लो नहीं है पर है तो लो की साइड पे, जब हीमोग्लोबिन लो होता है तो भी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है.
तो और चीज़ें भी देखनी है, एंड यू हैव टू चेक कि आपकी हार्ट बीट जब आप जागते हैं तभी ज़्यादा होती है। मे बी व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, अगर आप बिस्तरे में लेटे हुए हैं, तो तब अगर आप अपनी हार्ट बीट चेक कर लें, दैट इज़ कॉल्ड रेस्टिंग पल्स, दैट मे गिव अस अ बेटर आइडिया, स्ट्रॉन्गर आइडिया। सर, एक पॉइंटेड क्वेश्चन आ रहा है मंजू शर्मा जी का, और मैं इस क्वेश्चन के साथ 100% सहमत हूँ। गुड इवनिंग सर, प्लीज सजेस्ट कुकिंग ऑयल्स फॉर गुड हेल्थ टू मैनेज कोलेस्ट्रॉल, एंड प्लीज डोंट से ऑलिव ऑयल विच इज इरेलीवेंट फॉर इंडियन कुकिंग, क्योंकि ऑलिव ऑयल का जो स्मोक पॉइंट या जो फ्लैश पॉइंट है वो बहुत लो होता है, इट डजंट सूट इंडियन कुकिंग। एंड ऑल्सो डोंट से एवोकेडो ऑयल, क्योंकि महंगा बहुत है। और मुझे पता है कि आपके दोस्त हैं डॉक्टर मनीष धवन, जिनको एवोकेडो बहुत पसंद है, मगर वो 1200 रुपए किलो आता है। तो विच आर द ऑयल्स दैट वी शुड प्रेफर इन इंडिया? देखिए, अगर हम लार्ज पब्लिक डोमेन में के हिसाब से बात करेंगे तो एवरी ऑयल हैज इट्स ओन क्वालिटीज. There are some oil which have some amino acids. There are some oil which are have other amino acids. So there is no head-to-head trials of different kind of oils. I am again repeating these things. The guidelines recommend the lifestyle in total rather than a specifically going for a particular oil. They definitely say the saturated fatty acid should be avoided, but any kind of oil will do good. For example, you can go for sarson tail, you can go for vanaspati tail, any kind of the oil is there, but not specifically, they have not mentioned very specifically you should go for this kind of oil and this is very much beneficial. Even if there are some studies which says that this kind of oil is beneficial, but then you have to look into the statistics. How beneficial is this number? For example, we are spending 1200 rupees for a gain of only 1% or 2%. That is not a logical thing. So rather than adapting in total lifestyle, oil is one part of the lifestyle that will be more fruitful. So just don't worry about the things. You eat edible amount of oils or fat, whatever necessary component of the diet. Enjoy it fully, and but also because it is a calorie dense product, so go for intense workout also. That can balance out the risk. एंड मंजू जी, थैंक यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही है टेक केयर ऑफ योर हार्ट। अब जो फैट या ऑयल्स होते हैं, व्हाई वी लाइक देम इन आवर फूड इज बिकॉज दे मेक आवर फूड पैलेटेबल, दे मेक इट टेस्टी। मक्खन टेस्टी होता है। Use a combination of oils like Dr. Kamal is saying, and जो closest है to olive oil from an Indian perspective in terms of omega 3 omega 6 ratio, that is the humble mustard oil, सरसों का तेल. So if there is a first choice, it will be mustard oil, and the second is groundnut oil. So both are supposedly humble oils, and these are what we should recommend. However, do not stick to any of these alone also either. Take a combination of everything so that you get omega 3, omega 6, omega 9, all kinds of fatty acids. So maybe for an average Indian family, 40% of mustard oil, 40% of any other oil, maybe soya bean oil or groundnut oil, and 20% of ghee. This would be a fairly okay combination, and which will meet the needs of virtually everybody in the family. डॉक्टर कमल, एक और क्वेश्चन आता है डॉक्टर समरीन फातिमा से अबाउट द माइंड एंड द हार्ट। तो दिल मन की सुनता है या मन दिल की सुनता है, या बोथ ऑफ द अबव? There is a very good quote on this. The heart do not have brain, so you have to take care of your heart yourself. So मन और दिल का it's very uh, you can say a dicey situation. Who will win among this kind of husband-wife relationship? I think sir will throw lights on this issue. It is nice to see that cardiologists also have a heart, क्योंकि cardiologists भी शर्मा जाते हैं जब ऐसे सवाल पूछे जाएं पब्लिक में। सो डॉक्टर फातिमा मैडम, एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। तो जब हम बात करते हैं माइंड बॉडी मेडिसिन की,
तो ये है कि इट इज अ बाई डायरेक्शनल मल्टी फेस्टेड रिलेशनशिप. जो माइंड है दैट सेंड्स मेनी मैसेजेस टू द हार्ट एंड टू द बॉडी. The body also responds and sends messages to the mind. It is not just about philosophy or about poetry. There is actually scientific background for this. तो हार्ट में से हार्मोन्स निकलते हैं. Let us take an example. We'll ask Dr. Kamal to speak about some cardiac hormones, maybe like BNP. तो हार्ट में से हार्मोन्स निकलते हैं. वो हमें ये बता देते हैं कि हार्ट पे बोझ कितना पड़ रहा है. जब बॉडी को पता चलता है, बॉडी को मतलब ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, उसको जब पता चलता है कि भी हार्ट बेचारा थक रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी में है, बीएनपी बढ़ गया है, तो ब्रेन ऐसे हार्मोन्स निकालता है जो कोशिश करते हैं कि किडनी में से ज्यादा यूरिन निकले. जब यूरिन निकलेगा तो सोडियम भी निकल जाएगा, नमक भी निकल जाएगा, तो वो ऑफ लोडिंग करने की कोशिश करता है या डीप्रेशराइज करने की कोशिश करता है हार्ट को. ऑन दी अदर हैंड, जब मान लो हार्ट को पता चलता है कि ब्लड प्रेशर ही नहीं है, जो ब्लड आ रहा है हार्ट में उसमें प्रेशर कम है, तो फिर हार्ट चुकन्ना हो जाता है भी, ये तो गड़बड़ होने लगी है. सो देन द हार्ट सेंड्स मैसेजेस टू द माइंड कि चलो जी काम करो एंड लेट अस कंजर्व सोडियम. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. द माइंड ऑल्सो स्पीक्स टू द हार्ट एंड द माइंड माइट टेल द हार्ट कि यार तुम अपनी हार्ट बीट बढ़ा दो, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेल. या तुम अपनी हार्ट बीट स्लो कर दो, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी. एंड देर आर ऑल दीज एंडोक्राइन पाथवेज, न्यूरोट्रांसमीटर पाथवेज, विच आर ऑल एविडेंस बेस्ड. सो द आंसर इज इट्स अ बोथ वेज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. सर, ग्रीटिंग्स आ रही हैं फ्रॉम सीमा मैडम फ्रॉम कोलकाता, भूपिंदर सिंह जी. एंड मैडम सीमा says, blood thinners, we use these to make the blood thin. Do they affect the liver or are they safe? Secondly, is this correct that high blood pressure itself is not a disease? It is a symptom of underlying disease. So, would you want to speak about primary hypertension and secondary hypertension both? तो एक liver वाला सवाल और एक blood pressure वाला. यस सर, ब्लड थिनर्स देयर आर, इफ यू आर सेइंग ब्लड थिनर्स, तो इसके काफ़ी मतलब हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एस्पिरिन है, हमारे पास क्लोपिडोग्रिल है, हमारे पास और एडवांस ब्लड थिनर हैं जो डिफरेंट क्लोट्स के अंदर स्पेसिफिकली काम करते हैं. कुछ ब्लड थिनर्स लीवर से अफेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते, बट ग्रोसली मोर और लेस generally they do not interfere with liver disease. But one thing that we need to take care is when the liver is involved. जब हमारा liver खराब होता है तो liver कुछ ऐसे chemicals निकालता है जिससे हमारा blood एक नॉर्मल स्टेट में रहता है. अगर liver खराब होगा तो हमारा blood पहले ही बहुत पतला हो जाएगा. तो हमें जब भी liver disease होगी तो हमें इस चीज़ के लिए विजिलेंट रहना पड़ेगा कि जो भी आपके ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं या कार्डियोलॉजिस्ट हैं कि वो ब्लड की थिनर्स की डोसेज को इस तरीके से एडजस्ट करें ताकि हमारा एक सेफ्टी मार्जिन बना रहे. और जो सेकंड क्वेश्चन है कि हाइपरटेंशन इटसेल्फ इज ए डिजीज और नॉट, दैट इज ट्रू. हाइपरटेंशन इटसेल्फ इज ए डिजीज रेदर देन इट इज अ, if I club all the non-communicable disease together, and I think diabetes and heart hypertension, these are the biggest uh, burden on any government uh, when we make policies for decreasing the events of heart disease. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज दीज आर टू डिजीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी अदर डिजीज, सो दे जनरली डू इन क्लस्टर्स. फॉर एग्जांपल, हाइपरटेंशन की काफ़ी नंबर पेशेंट में आप मिलेंगे, इनको ओबेसिटी भी है, उनको डायबिटीज़ भी है, उनको हार्ट डिजीज़ भी है, और ये क्लस्टर में भी होंगे, और इनकी वजह से हार्ट डिजीज़ होने का खतरा भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है. हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, किडनी डिजीज़. सो अगर हम बहुत एक्टिवली, गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली अवेयरनेस क्रिएट करे कि हमें सॉल्ट इंटेक कम करना है, एक्टिविटीज़ इंप्रूव करनी है, जंक फूड कम करना है, मीन्स ऑल द रिस्क फैक्टर्स जो बचपन से ही शुरू हो जाएं, जो बचपन से ही शुरू हो जाएं, तो फ्यूचर में उनको हाइपरटेंशन होने का खतरा हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं.
हाइपरटेंशन कम होगा तो हार्ट डिजीज होने का खतरा कम होगा, और जो हमारी पब्लिक हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। तो इससे गवर्नमेंट को भी काफ़ी बेनिफिट होगा अगर हम इन्वेस्टमेंट बचपन से ही शुरू करें इस चीज़ के लिए। सो हाइपरटेंशन को आप सीरियसली लेंगे, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, ताकि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। Uh, I would like to second what Dr. Kamal has said. Actually, out of all the chronic diseases, सबसे highest burden जो है या highest pressure जो है हम पे, पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो हाई ब्लड प्रेशर का ही है. हाई ब्लड प्रेशर इज मोर कॉमन देन डायबिटीज, इट इज मोर कॉमन देन हार्ट डिजीज. एक एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है. एसेंशियल मीन्स के और कोई रीजन नहीं है, एजिंग के साथ ही होता है, बट अगर हम गलत लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो वो एजिंग जल्दी आएगी. और एक अलग तरह की हाइपरटेंशन है जिसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं. इसमें यह है कि या तो आपके किडनी में या आपके एड्रिनल ग्लैंड में, किडनी या एड्रिनल ग्लैंड में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसकी वजह से बीपी हाई हो रहा है. ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, यदि आप स्पेशलिटी क्लिनिक में जाएंगे जहाँ पे सारे टेस्ट हो रहे हैं, लेट्स से यू गो टू अ हॉस्पिटल लाइक एम्स न्यू दिल्ली, तो वहाँ पे 10 या 20% में कुछ ना कुछ नुक्स निकल आएगा. बट इफ यू कम to the periphery, to general practice, to a primary health care or community health care center, 99% of all patients, 95% will have essential hypertension. Either way you have to treat, क्योंकि नहीं treat करेंगे तो फिर complications आती हैं, वो दिक्कत आती है. सर, भूपेंद्र जी एक सवाल पूछते हैं जो मैं भी मन में सोच रहा हूँ पिछले कुछ दिन से. ये हार्ट वाले डॉक्टर्स ने यूज हार्ट क्यों लिखा है, यूज हार्ट, नो हार्ट, एंड इमोजी का बीच में क्या काम, मतलब इज इट कि हम हार्ट को सीरियस करना चाहते हैं, नाउ वी कांट यूज द इमोजी फॉर रोमांटिक पर्पसेस और नॉटी पर्पसेस एनीमोर. Uh, I have not gone through this actually. हाँ. Even being cardiologist, I have not gone through this logo. That it is first time I am just hearing from you that use heart, and it has been proposed by World Heart Foundation. Probably general consensus may be like that. It's just to attract the youth population so that they become more. It become more catchy for them. And use heart means use intelligently, use wiser, be wise, and just to take care of your heart so that we can prevent the premature complications. Because हमें अदर देन वट एवर दिस लोगो मीन्स, हमें ये चीज़ समझना होगा कि हार्ट डिजीज के दो पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी हैं समझना. फर्स्ट, देर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ एट अर्ली एज, एंड ये वो एज होती है जब पेशेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फैमिली को, जनरली 40s to 50 में, इन दियर 40s और 50. So one, there is a financial loss because of disease, because of the cost they are incurring, and secondly, there is a loss of income also. But once the patient is in heart, become a patient of heart disease, the income he is earning becomes very less as compared to the healthy patients. So, is considering this important aspect, हमें बहुत we have to be very vigilant about the occurrence of heart disease in future. And this might be one propaganda. One might this might be one I think thought that they have used this caption. I agree with you, and maybe when we use the heart emoji, of course we will use it for whatever other purposes we are using, but it will remind us कि हम अपने heart का भी ख्याल रखें. We should be responsible, we should be rational, we should take care of our heart health. इसी चीज पे मिस्टर गगन अत्रेजा जो लीडिंग इंडस्ट्री लीडर हैं अहमदाबाद से, गगन अत्रेजा साहब पूछते हैं कि आपने बात की अबाउट प्रोटेक्टिंग द हार्ट, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि ऑल पीपल विद डायबिटीज एज्ड मोर देन 40 इयर्स शुड बी ऑन स्टैटिन, बट Yes. एक्चुअली हम स्टैटिन नहीं देते. तो अत्रेजा साहब पूछ रहे हैं, एक स्टैटिन सत्याग्रह शुरू करने की जरूरत है देश में. We need to start a statin satyagraha in the country. What role can all of us play to ensure that this satyagraha actually reaches each and every person who needs statins?
Yes, it does. Rather than there are some this aggression vary from person to person. I do remember one conference where one of the gentlemen he stand up and said, "Sir, why should we not fortify the our bread and roti and chapati with statin itself, just like we do with the iodine?" So that was a very the hall was full of kind of a comedy scenes, but that actually is true because there are now the literature is full of evidences that the statin significantly decreases the incidence and new onset of heart disease if we take it at the appropriate age and appropriate risk factors. Definitely, we do not we not all the person there are not all the populations they do require statins, but we also need to understand that this optimal dosage of statin is being used in less than 20, 20, 30% of the patient who actually need the statins. So यहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ अपने प्रोफेशनल कलीग्स के ऊपर भी हैं बिकॉज इसमें नंबर वन आपको अपडेट रखना पड़ेगा अपने आप को कि न्यू एविडेंसेस अब ये हैं कि हमें ज़रूरत है ताकि आगे फ्यूचर में इनका बर्डन कम किया जा सके और सेकेंडली कुछ थेरेपेटिक इनर्शिया भी एक डेवलप होता है कि कोई डॉक्टर पसंद नहीं करता कि जो उसे 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है वो उसे चेंज करने के लिए एकदम से वो कंफर्टेबल फील करे सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो हमें फुलफिल जो हमें हमें भी कमिटमेंट्स करना पड़ेगा एंड वी शुड बी ऑनेस्ट एंड वी शुड फील आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी that more and more people who really need statin should be prescribed this kind of therapy. अतरेजा साहब और डॉक्टर सक्सेना क्वेश्चन पूछते हैं, जिस तरह से हम वैक्सीन की बात करते हैं, तो हमने एक बार एक टीका लगाया हर एक व्यक्ति को और स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया। हमने कुछ एक बार पोलियो की बूंदें दी लोगों को और फिर पोलियो इरेडिकेट हो गया। बट वी कंटिन्यू टू गिव पोलियो ड्रॉप्स टू ईच एंड एवरी चाइल्ड इन इंडिया। इस तरह से कैन वी से दैट statins or aspirin are like a vaccine against heart disease and you just have to keep on giving them continuously instead of once? Definitely. So we need to give them in appropriate category of patients, not all the patients, because definitely, as I earlier said, it is being underused in appropriate population. But we also need to understand there are very there different pockets of population which are unnecessarily consuming this kind of drugs and they ultimately land up with the gastric ulcers or statin induced some side effects. So it basically what I feel we it's a kind of job of a doctor and they need to understand that if a patient is coming to you then you should go for appropriate dose of statin and aspirin and wherever indicated it will be lifelong therapy. You cannot interrupt or stop this unnecessarily because there is no parameter. It is a continuous process. LDL throughout the life will keep on percolating in your blood vessels and keep on depositing and keep on increasing the size of this blood vessel blockages. There are vaccines also nowadays available, and very soon probably they may be available in the market, where we can give for LDL lowering we can give them once in a 6 month or 1 year like that. But as of now, they are under trial and may take another 2 year, 3 year down the line for mass usage. So that means good news is around the corner, but until then, at least let us use the drugs that we have available, which Yes. is statins for a vast majority of adults and aspirin for those people who already have heart disease. आपने एक और बात की कि यू हैव टू बी विजिलेंट ऑल द टाइम, हमें चुकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि कभी भी ये हार्ट डिजीज आ सकती है एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डियो विजिलेंस जो आप ही ने डॉक्टर कमल स्पीयर हेड किया था इंडिया में कुछ साल पहले। सो कार्डियो विजिलेंस मीन्स कि सब चुकन्ने रहें और इकट्ठे मिलके एकजुट रह के हम ख्याल रखें अपने दिल का भी और आसपास वाले दिलों का भी एंड नॉट इन दैट पोइटिकल और इन द रोमांटिक मैनर, फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल।
Some more questions let's take. There are actually so many questions coming up. If we can have a short answer, Dr. Pawar sir is 74 years old, diabetes with very good control, 6.4%. Serum cholesterol is 221. LDL is 144, even though he is on rosuvastatin 20 milligram. So should he add something at age 74 with an LDL of 144? Uh, the general consensus is to lower your LDL by 50% if you do not have other risk factor other than diabetes. So if you are only diabetic, you do not have any history of premature heart disease, means less than 45 years of age of your any of the primary family member, and you do not have peripheral heart disease, means you are having suffering from pain with walking, you do not have past stenting, past bypass surgeries, or any your kidney functions are normal, or you do not have any stroke history. So broadly, these are 5 6 categories. Then it's okay. Go for this 20 milligram of statins. Swapna Jainji shares a very nice mnemonic to keep our heart healthy. Uh, H for happy, stay happy. E for evergreen. A for avoid stress and follow a healthy lifestyle. And R, rate yourself 10 by 10 every day. You've come a long way, smile and stay optimistic. So cheer yourself up. And T is also take time out for yourself, enjoy life. So follow a balanced lifestyle and your heart will remain happy. Sir, a question, Dr. Kamal, though I think Pramod Agarwal ji, this would require a very, very long answer. Uh, Dr. Kamal, can patients on NOACs, novel oral anticoagulants, be switched to clopidogrel or aspirin, or are the indications totally different? No, they have totally different indications. Basically, just to very in a very brief manner, there are two kind of blood flow in our body. One is fast blood flow that in a fast manner. The clopidogrel aspirin is for that kind of clots in that kind of pathway. If we have a blood clots in a way where the blood flow is slowly moving, then we use Novax, acetron, or warfarin. So there are two different pathways because whatever is depositing in that clot, the therapy depends on the ingredient of that thrombus. So we both have different things. We cannot switch this to this. एक क्वेश्चन मैं लेता हूं जो प्रमोद अग्रवाल साहब ने पॉइंट आउट किया है एंड रियली रियली इंपॉर्टेंट. सो लेट मी शेयर माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस. Patients get confused. Allopathic science says don't use saturated fats like natural ghee. Actually, हम कहते हैं लिमिट में यूज कर रहे हैं. I myself had mentioned around 20% of the total intake can be from ghee. But Ayurveda says use natural ghee as it increases HDL. So what is the reason? मुझे खुद को ये रीजन लगता है प्रमोद अग्रवाल साहब कि जब ये 4 5 6 हज़ार साल पहले जब आयुर्वेद इवॉल्व हुई, अगर उस टाइम पे देखें तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, रेफ्रिजरेटर नहीं थे, स्टील नहीं था, कांच नहीं था, कांच की शायद बोतलें ना हो, और प्लास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं था. तो उन्होंने जब दूध देखा, दूध की दही बन जाती है एक्चुअली 10 months out of 12 in North India and 12 months out of 12 in South India, you can convert milk to curd without any external source of heat, without any external energy. उन्होंने ये देखा कि दूध की जो शेल्फ लाइफ है वो कम है, पेरिशेबिलिटी ज्यादा है. उसको आप दही में कन्वर्ट कर दें तो थोड़ी सी आपकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, but just 1 or 2 days. And then what will you do for the rest of the month? And if you have excess of milk at home, let us say the cow is giving milk, what will you do with it? Usko फेंकेंगे थोड़ी ना. So then some very bright soul would have discovered कि आप उसको घी में convert कर दें तो आप उसकी shelf life बढ़ा रहे हैं. That is how ghee was created. If you look at the Western world, they don't use ghee, they don't use clarified butter. They have other ways. वहाँ पे मौसम अलग है. उनका शायद दूध या उनका बटर रैंसिड नहीं होता होगा इतनी जल्दी. हमारे यहाँ जब देखें तो चीजें रैंसिड बहुत जल्दी हो जाती हैं. But now we have better ways of packaging, better ways of preservation,
and now we are able to get these oils. Another thing is कि 5-10 साल पहले basic science was not developed. They did not know what HDL is. They did not know what omega-3 omega fatty acids are. Still, they were able to do a very good job. So we should respect them for what they have given to us. But now that we have more information from basic science, from biochemistry, we should acknowledge that. We should adopt that. जब हम ये चीज समझते हैं तो आई थिंक बहुत सारा लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है एंड अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज के इट बिकम्स अ यू वर्सेस अस हम वर्सेस तुम ऐसे वाली लड़ाई होती है एंड पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट एविडेंस और अबाउट आउटकम्स दे आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट कि मैंने इस झंडे को लहराना है एंड दे फॉरगेट कि आवर फाइनल आउटकम इज हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड हार्मनी डॉक्टर कमल सर योर टेक ऑन दिस Yes, the decision of evidence based on the evidences and science should prevail. I totally agree with this. There are circumstances on the earlier. You should also take into the consideration that even 30 years back, the hard work the people used to do was far better and far higher as compared to the current scenario where everything is machinery. So you just cannot go for general advice that go and consume ghee because that is a calorie dense object. So ultimately, if you will not shed out of your body, it will ultimately start depositing in your heart and other blood vessels. So absolutely true, sir. हमारी ओपीडी में जो सबसे कॉमन रीजन है शुगर ना टूटने का वो घी होता है एक्चुअली जब आप एक चपाती खाते हैं दैट इज रफली 80 कैलोरीज मगर जब आप 5 ग्राम एक छोटा चम्मच अगर आप घी या मक्खन का उसके ऊपर डालते हैं जी मैंने तो रोटी चोपड़ी थी सिर्फ एक मक्खन एक चम्मच डाला था दैट 5 into 9 इज 45 कैलोरीज तो एक जो 80 ग्राम की कैलोरी है विच इज गिविंग यू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन उसको आप सीधा 125 कैलोरी में कर देते हैं 1.5 गुना कर देते हैं एंड वहां पे गड़बड़ आ जाती है शुगर कंट्रोल में डॉक्टर नलनाथ शारदा सर पॉइंट आउट करते हैं दैट लॉर्ड कृष्णा लव्ड बटर मगर बाल अवस्था में जब वो छोटे थे और जब वो मक्खन खाते थे मे बी दिन में वो मक्खन खाते थे मगर शाम को जाके वो नाग से भी लड़ाई करते थे और पर्वत भी उठाते थे अपने एक हाथ में सो ही डिड अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी सो if we are able to do that physical activity then there's no harm then you need more calories but not otherwise घी के बारे में सीमा जी ने पूछा था तो यू ऑलरेडी आंसर्ड सर विनय गुप्ता जी पूछते हैं हाउ लॉन्ग कैन वी टेक स्टैटिन्स मान लो मैंने शुरू कर दिया लेट्स से एज अ पर्सन विद डायबिटीज अबव 40 और एज अ person above 50-55 because I was high risk for heart disease should I continue lifelong As of now, yes, because this is there is some conflicting data, and we don't have in science we do not have the answers. What is the appropriate time to discontinue the statin therapy? So, till new evidences, as per scientific evidences, go and continue with these statin therapy lifelong. विनय गुप्ता जी के ट्राइग्लिसराइड्स हमेशा 200 से ऊपर रहते हैं वी डोंट हैव द एलडीएल रिपोर्ट so perhaps if Mr. Vinay is still listening if you can have your total cholesterol and LDL that will help Dr. Kamal answer in a more appropriate manner ललित कथुरिया साहब हैं लीडिंग बिजनेसमैन फ्रॉम सोनीपत इन हरियाणा एंड ललित जी पूछते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओरल हेल्थ health of the mouth the teeth the gums and the health of the heart Uh, so our this oral cavity contains loads of bacteria that can deposit, if in a general term I say, that can deposit and create infection of the valves of the heart. So generally, the people who lives in a crowded place and they do not maintain proper hygienic conditions, they ultimately land up in a valvular heart disease where the one of the valve become either leak or become stenotic. And if any patient who had undergone any kind of surgeries, the infection can also percolate to that surgical part. For example, patient having artificial valve or having birth hole in the heart from the birth. So these kind of patients are prone for infection due to oral unhygienic situations. So just consult with the dentist
so that they can take care of these things and prevent you from any this kind of infections. थैंक्स। राजू पारेख जी पूछते हैं, इज इट नेसेसरी टू टेक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स? दैट इज if you are using these oils without heating them. मान लो आप सैलेड ड्रेसिंग के लिए यूज कर रहे हैं जैसे यूरोप में होता है, तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का फायदा है। मगर जो इंडियन कुकिंग है उसमें हम हीट करते हैं अपने ऑयल्स को, तो चाहे वो कोल्ड प्रेस्ड हो, हिंदी इज कच्ची घानी का तेल, चाहे वो ना हो, बात वहीं आ जाएगी। इफ यू आर गोइंग टू क्रॉस द स्मोकिंग पॉइंट और द फ्लैश पॉइंट ऑफ एन ऑयल, देन इट डजंट मेक अ डिफरेंस। हर्षी ढींगड़ा जी क्वेश्चन पूछती हैं, तो यस, मोनो अनसैचुरेटेड दैट इज मुफा एंड पोली अनसैचुरेटेड दैट इज पुफा, बोथ आर इक्वली हेल्दी। सैचुरेटेड इज कंसिडर्ड लेस हेल्दी क्योंकि वो ज्यादा जमता है ब्लड वेसल्स में। जो ओमेगा 9 फैटी एसिड्स हैं वो ज्यादातर मुफा होते हैं, MUFA। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों ज्यादातर पुफा होते हैं। एंड 36 का आंकड़ा अगर आप याद रख लें, सो देन यू वुड वांट मोर ऑफ 3 एंड लेस ऑफ 6। दैट इज अ जनरल वे टू रिमेंबर 36। सर एक दो क्वेश्चन अगर आप अलाउ कर दें, इफ यू कैन टेक, इट्स ऑलरेडी 8 PM। Aspirin 150 is used in pregnancy quite frequently. 150 milligram for pregnancy. Can we use it otherwise routinely in heart health, for heart health? No, without consulting your cardiologist or physician, don't start with statins spontaneously because ultimately you may land up in a gastric ulcer in the later stage. So So aspirin, your physician or cardiologist will assess your risk, and then only after assessing the risk, only then start your aspirin or statin therapy. so aspirin from obstetric point of view, if there is an indication, yes, आप खून को पतला करना चाहते हैं ताकि बच्चे को, फीटस को ब्लड मिले, but that is for fetal health. Maternal health पे कोई impact नहीं आ रहा, ना positive ना negative, and we will follow the rules and the guidelines, and otherwise only in people with established heart disease. सर सिंगल सेंटेंस आंसर। अंशु गोयल जी पूछते हैं, माय VLDL इज बिलो द नॉर्मल ऑफ बिलो द रेंज, इज दिस गुड और बैड? No, it is very difficult to comment without detailed lipidogram. तो सारे लिपिड्स अगर हों, इट्स इजियर टू कमेंट। सीमा जी पूछती हैं, इफ somebody has one simple cyst in the kidney, सिंपल सिस्ट लिखा हुआ है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में, और दूसरे व्यक्ति का लिखा हुआ है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, कैन बोथ ऑफ दीज लीड टू हाई ब्लड प्रेशर? Generally, polycystic kidney disease are more frequently they have episodes of hypertension as compared to the single cyst. Single cysts are mostly benign, but polycystic kidney disease they are associated with some congenital problems in the kidney that may ultimately derange the normal parenchyma of kidney, which is a kind of a sensor for control of the blood pressures. So if you are facing such situations, for better clarification, आप जो आपके नियरेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं या गुर्दे रोग विशेषज्ञ हैं, आप उनसे एक बार सलाह जरूर लें। स्वप्ना जैन जी एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट रेज करती हैं। आई थिंक व्हेन वी आर हैप्पी वी लिसन टू आवर हार्ट, and when we are stressed out, then we listen to our mind, and it can change also from time to time. Yes. Sir, lots of questions, and I will request everybody कि हम इस टॉपिक को आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। सो अभिनव अरोड़ा, जो भी उन्होंने रेबीज के बारे में बोला, आप फॉलो कर लें डॉक्टर को, टेंशन ना लें, डोंट हैव बैड थॉट्स। विनय गुप्ता जी का टोटल कोलेस्ट्रॉल 160 है, HDL 48 है, एंड ट्राइग्लिसराइड्स 200 है, LDL 40 है। That is good. गुड। तो ट्राइग्लिसराइड्स के पीछे ना भागें, इट विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म आउटकम्स। LDL is very optimally controlled. नवीन कुमार जी जय हिंद कर रहे हैं आपको। सर जय हिंद। 35 साल के जवान हैं हमारे, नो हार्ट डिजीज, मगर 2 एपिसोड्स हुई हैं ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मीटोप्रोल भी दिया गया उनको, टेंशन भी रहती है उन्हें, पर 35 साल पे क्यों टेंशन रहेगी नवीन, मस्त रहो। वो पूछ रहे हैं इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, रिक्वेस्टिंग टू आंसर इन हिंदी Yes. प्लीज। हाँ,
देखिए एट्रियल फिब्रिलेशन इस एज में काफ़ी कॉमन है। एट्रियल फिब्रिलेशन मेटोप्रोलोल अगर हमें बेटर है कि आप किसी हृदय रोगी विशेषज्ञ से आप मिलें, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, बिकॉज़ इसमें काफ़ी पैरामीटर हमें एक आपको एक एनालाइज़ करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एट्रियल फिब्रिलेशन के एपिसोड्स कितनी फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, 6 महीने में 2 बार हो रहे हैं या साल में 2 बार हो रहे हैं या हफ़्ते में डेली बार-बार हो रहे हैं। सो आज की डेट में जो मेटाप्रोलोल है, उससे बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जो कि आपकी एज के लिए ज़्यादा एप्रोप्रिएट हैं। मेटाप्रोलोल के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट हम कह सकते हैं ऑन द हायर साइड है, बट आपके केस में हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी कि एट्रियल फिब्रिलेशन के एपिसोड्स को ज़ीरो कर दिया जाए और जो पॉसिबल है डिफरेंट ड्रग्स के साथ। और वो ड्रग हमें एपिसोड जब हो रहे हैं तभी लेनी है। एक ये स्ट्रैटेजी भी है जिसको पिल एंड पॉकेट बोलते हैं कि लेकिन ये तभी सक्सेसफुल है अगर आपके एपिसोड बहुत कम है। फॉर एग्जांपल 1 साल में 2 बार, 3 बार इसलिए। तो आपने जेब में टेबलेट रखी और जब भी एपिसोड जो 2 टेबलेट हैं उसको साथ आप में लेंगे तो 3, 4, 5 घंटे में जनरली वो रिवर्ट बैक हो जाता है। और अगर ये फ्रीक्वेंटली है, हफ्ते में या 2 हफ्ते में बार-बार हो रहा है तो फिर हमें डेली बेसिस पे ट्रीटमेंट शुरू करना होता है। बट जस्ट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें जो जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन में इंटरेस्ट हो, सो दैट एप्रोप्रिएट जो मेडिसिन्स हैं वो शुरू की जा सके। और नवीन की बात सुन के मुझे एक गाना याद आ रहा है बॉलीवुड का, दिल धड़क हिंदी मूवी याद आ रही है, दिल धड़कने दो। तो धड़कने दो नवीन, और टेंशन मत लेना इसकी। ऐसे ही अभिनव अरोड़ा जी को कहूंगा कि दिल धड़कने दो बट टेंशन मत लो, डोंट हैव दीज बैड थॉट्स एंड एंजाइटी। इवन 5 days आफ्टर द डॉग लिक और स्क्रैच यू कैन गेट द एंटी रेबीज वैक्सीन। तो 037 जो शेड्यूल है वो आप आज लगवा लें या कल सुबह लगवा लें टीका। डोंट गेट स्ट्रेस्ड। एंड वो टीका बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे रेबीज वैक्सीन के। Just one last question. This question comes from Madam Aparna Veera, who lives in Manila, Philippines, and also from Mr. Gagan Itreja, who is in Ahmedabad, India. ये कहते हैं कि if we understand correctly, we are talking about statins. Statins will help reduce heart disease. हमें ये भी पता है कि statins एक एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, HMG यस। को रिडक्टेज को इनहिबिट करते हैं। तो नॉर्मली बॉडी में ये एंजाइम कैसे इनहिबिट होता है? इज देयर एनी नेचुरल सोर्स ऑफ स्टैटिन? दैट इज वन क्वेश्चन। एंड सेकेंडली, यदि किसी को डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज नहीं है, तो हमें इनको एनकरेज करना चाहिए कि आप स्टैटिन ले लें पहले ही, ताकि कल को आपको हार्ट डिजीज ना हो। यस, मैंने कहा बॉडी जो है उनके अपने रेगुलेटरी सिस्टम्स बहुत ही प्रिसाइज तरीके से कंट्रोल रहते हैं। सेम ट्रू होल्ड ट्रू फॉर कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जब उनके रिसेप्टर से बाइंड करता है तो सेल्स के अंदर मूव करता है। उसके बाद देयर आर कॉम्प्लेक्स पाथवेज एंड दे गिव सिग्नल टू द रिसेप्टर्स दैट you should take more cholesterol or just wash this cholesterol away from the cells. So there is some feedback mechanism that is present in the wall of the cells and that can very much and very intelligently regulate the supply of cholesterol that is exactly needed for this. The second question is, so that actually means depending upon these signaling pathways, we are now working. Science is working and coming up with more molecules that can reduce this cholesterol uptake and decrease the risk of heart disease. Second is whether if you are diabetic, then diabetic itself is a major risk factor for heart disease. Means it is not a scientifically proven risk factor. Rather than the chances of heart disease in it is very high, and there is a clustering of heart disease with diabetic. So in case of diabetic, there is a recommendation that you should go for low dose statins if you are moderate risk of heart disease, and the dose is recommended depending upon the different molecules at orvastatin or rosuvastatin. The basic idea is reduce it by approximately 50% of the your LDL cholesterol, or use the dose that is maximally
tolerable by the patients, because statin has some side effect in the form muscle cramps or like that. If patient is facing that side effect, then we have to titrate accordingly and we have to leave the targets. So you are right in saying that we should consider statin strongly in a population who are at risk of heart disease, and definitely there is a internal mechanisms that can control the cholesterol influx. So, thank you, and I hope that answers the question. Thank you, Aparna ji, for logging in. नवीन कुमार जी कहते हैं कि इनका एट्रियल फिब्रिलेशन ईपी स्टडी में नहीं इंड्यूस हुआ, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी में, और 2 साल में 2 ही बार एपिसोड आए हैं. तो बिल्कुल, तो आप बिल्कुल यू आर ए राइट कैंडिडेट फॉर पिल एंड पॉकेट अप्रोच व्हाट वी से. So there are some medicines, but the first time you have to take that medicine in presence of the cardiologist himself, because at some time these drugs may have side effect, so that can be managed only in the cardiac center itself. So if you tolerated both the drugs on the first setting, for next time you can keep your these drugs in your pocket, and whenever you feel you had documented episodes of atrial fibrillations, you can use this Apple Watch or other digital watch also that can very precisely pick up the atrial fibrillation, and then you can take that two drugs, and they have very good results. So you don't need to take metoprolol on daily basis. डॉक्टर कमल, इट्स नियरली 8:15 PM एंड मिस्टर ललित कथुरिया सोनीपत से हमें याद करा रहे हैं कि आप ही तो हमें बताते हैं कि समय पे डिनर करें और समय पे सोएं. तो वो कह रहे हैं कि अब ये भोजन की बेला है. बिल्कुल. Does early to bed, early to rise, does that help in heart health? ओके सर. नहीं, ये ललित कथुरिया साहब का सवाल है. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, डज इट हेल्प इन हार्ट हेल्थ? हाँ, yes, yes. Because I think this question should be answered by Dr. Kalra himself, because everything is being controlled in a very sequential manner in body. Same hold true for hormones. We have a natural hormones running in the body that has a very circadian rhythm. Means they rise at particular time after sunrise or after sunset. Some rise in the 12 o'clock, some rise in the pehla peher, and our blood pressure, heart rate, they all, our quality of sleep, they all correlate with these circadian rhythms. So if the body is firing out the hormones, and this body is saying that go to bed and you are not going to bed, so definitely there will be a mismatch, and that will increase the risk of heart disease. So make your schedule early, that is rise up early, go for a morning walk, involve in the sports, do your routine work, and in the evening you can have some whatever like light dinner and have walk, or just go to bed early. I think that is a very good way of living. What's your take, sir, on this? I fully agree with Dr. Kamal. अपना दिल धड़कने दें, मगर दिल की सुने भी, और दिल को रेस्ट की भी जरूरत होती है. तो दिन में जो सिंपैथेटिक टोन होती है, वेरी क्लोज इक्विवेलेंट फ्रॉम संस्कृत और हिंदी और आयुर्वेद और भगवत गीता वुड बी राजसिक. द सिंपैथेटिक टोन प्रिडोमिनेट्स. रात के टाइम द पैरासिम्पैथेटिक और द तामसिक टोन प्रिडोमिनेट्स, एंड दोनों healthy हैं, provided that they remain in balance, provided that you moderate. So if you give adequate time to both, automatically your heart will live for a longer period of time. But if you begin overstressing your heart, दिन के टाइम आप सोते रहें, तामसिक रहें, रात के टाइम आप जागते रहें, राजसिक रहें, तो obviously the heart is going to go out of tune, it is going to go out of sync with the environment, and थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी, और milliseconds की भी गड़बड़ हो जाए तो दिक्कत आती है. That doesn't mean that we feel afraid about anything. अब जैसे देखो, कोई डॉग ने स्क्रैच कर दिया तो we get the rabies vaccine. मान लो साल में एक आध बार 2 बार एट्रियल फिब्रिलेशन का एपिसोड आ गया तो we take metoprolol.
So we just take action and we move ahead in life. With this, Dr. Kamal, it's 75 minutes. हमारा आज का टॉपिक था यूज योर हार्ट एंड नो योर हार्ट. योर ओपिनियन, ये जो चर्चा है हमारी, ये पूरा साल भर चलती रहेगी या उससे भी लंबी चलेगी? I would like to be on this platform again and again, and I think the message that we want to give to the public in a patchy manner, it is fruitful. It has been given out that you should be you should live in a decent way right from the childhood. So my ultimate message is go just start training your kids from the beginning. Just have a gap from the digital world in the early part of their life so that they can incline towards the sports activity, outdoor game activity, healthy lifestyles, and if possible, not it is not always possible because some there are professional barriers also, there are study barriers also. If possible, try to match the natural Rhythm. rhythm of the body. So the lives go for a healthy lifestyle because life is very beautiful and God has given us chance to serve the society and we must respect that. जो आपने स्पोर्ट्स की बात की डॉक्टर कमल, बिफोर वी कंक्लूड, एंड दिस इज स्पेशली स्पीकिंग टू नवीन कुमार, क्योंकि नवीन जी ने हमें ग्रीट किया जय हिंद के साथ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और आई एम वेरी श्योर कि नवीन जी आर्मी या सीआरपीएफ या हमारे हरियाणा पुलिस में कहीं काम करते हैं. नहीं भी करते तो ये तो मैं श्योर हूँ कि नवीन जी बहुत स्पोर्ट्स पसंद इंसान है. तो यदि आपका हार्ट, आपके हार्ट की फितरत ऐसी है कि वो तेजी से धड़कता है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन की तरफ, या पल्स फास्ट है, फिर आपको कैसी स्पोर्ट्स चूज करनी चाहिए? जो लंबी देर वाली स्पोर्ट्स हो, धीमी गति वाली, जैसे मैराथन रनिंग या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग. यदि आपका हार्ट है जो नॉर्मल स्पीड से दौड़ रहा है, तो फिर आप 100 मीटर स्प्रिंट की तरफ ध्यान दे सकते हैं. क्योंकि जब आप 100 मीटर स्प्रिंट की तैयारी करते हैं, या जब लेटर से आपने बॉक्सिंग मैच में जाना है या रेसलिंग में सिर्फ 5 या 7 मिनट का एक राउंड है, तो वहां पे हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है. तो आप अपने कोच से बात करें, स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट से बात करें, दे विल चूज द राइट गेम फॉर यू. यदि आपको नहीं समझ आती कि मैं क्या करूं, तो द बेस्ट स्पोर्ट्स इज कबड्डी. कबड्डी एक इतना प्यारा गेम है जो शरीर के हर अंग को और हार्ट के हर हिस्से को तंदुरुस्त करता है. जब आप कबड्डी खेलने जाते हैं, जब आप रेड पे जाते हैं, तो जब आप कबड्डी 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 बोलते हैं, यू आर एक्चुअली एनहेंसिंग पैरासिम्पैथेटिक टोन. आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी. एट द सेम टाइम आपको चुस्ती बहुत चाहिए. चारों अंग आपको यूज करने हैं और अपना दिमाग भी यूज करना है. वहां पे सिंपैथेटिक टोन है हर अंग में, मतलब दोनों लेग्स में, दोनों बाजू में ब्लड जा रहा है, ब्रेन में भी ब्लड जा रहा है. सो दिस इज अ परफेक्ट बैलेंस फॉर ऑटोनॉमिक हाइजीन. तो नवीन जी, जो भी आप गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, यू कैन मे बी मॉडिफाई दोज एज वेल. अपने कोच से बात करें या स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर से या कार्डियोलॉजिस्ट से बात करें, एंड दिस विल आल्सो हेल्प यू एंश्योर कि आपका दिल बिल्कुल सही स्पीड से अगले 100 साल के लिए धड़कता रहे. विद दिस डॉक्टर कमल, इट्स बीन ग्रेट हैविंग यू विद अस. हमारे साथ आज बैक स्टेज फराज हैं. फराज भी अपना दिल थाम के बैठे हुए हैं ना. फराज इज अ वेरी यंग एंड हैंडसम बॉय, तो इसलिए वो शर्माते भी हैं, आते नहीं है स्टेज पे सामने. So, Faraz, could you please show a certificate of appreciation for Dr. Kamal, please? Thank you, Faraz. Thank you, Dr. Kamal. Thank you so much. Before we conclude, any last message जो आप सबके साथ share करना चाहें? Uh, just enjoy your life to full extent and do not worry much about unnecessary stress. Yes, and use your heart in the right places. गलत जगह पे भी ना छोड़ाएं अपने हार्ट को. अपना ख्याल रखें. एक ही पर्सन को दें अपना हार्ट और उसका अच्छे से ख्याल रखें. With this, सबको शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी for being with us.
बहुत अच्छा लगता है सबसे बात करके, एंड सो मेनी क्वेश्चंस, सो मेनी कमेंट्स. दिस टेल्स अस कि एक्चुअली डॉक्टर कमल ने हमारा दिल छू लिया है. ही हैज टच्ड आवर हार्ट. सो थैंक यू Thank you. सो मच सर फॉर बीइंग विद अस. वी होप टू हैव विद यू अगेन सून. जय हिंद एवरीबॉडी. Thank you. Thank you.